So once again, we are in online PE and community coaching program. So good morning, all of you. Today we have speaker Mr. Sujit Panigrahi. He is CEO of Fitness 365. Sujit Panigrahi takes deep interest in technology, sports science, and education, and over 23 years in the industry. Sujit has done Master of Management Studies from BITS Pilani. Sujit sir was the Additional Director General at Commonwealth Game, Delhi 2010, and was responsible for planning and design of technology service across 60 plus competitive and non-competitive venue across Delhi. Sujit sir is a treasurer at Sports, Physical Education and Fitness and Leisure Skill Council, India, member of CBSE and NCRT Curriculum Committee, and an active member of FICCI and CII Sports Committee. Is a member of the Fit India Mission, which aim at making fitness an integral part of every Indian life. Is a part of committee that has drafted the Fit India protocol for different age group. So with all this, I would like to welcome you, sir, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India, and Lakshmi Bai National College of Physical Education. Welcome you, sir. Thank you. I welcome also Dr. Virendra Jhanjharia, sir. Sir has presently working as a assistant professor in the Department of Exercise Physiology at Lakshmi Bai National College of Institute of Physical Education, Gwalior, MP. Sir has more than 16 years of teaching experience in the field of physical education and sports. He did international coaching diploma in general conditioning from Samalvis University, Budapest, Hungary. Instrumental in development of physical education curriculum, PEC cards for CBSE school, served as experts committee member and resource person for the development of physical health and fitness scorecard under the campaign of Swasth Bachche Swasth Bharat. He delivered more than 200 lectures as resource person for various national and international conference workshop, refresher course, orientation course, etc. He has published more than 30 papers in national and international journals and proceeding. He is a professional squash player, also represented Indian contingent in the World Master Squash Championship at Johannesburg, South Africa. He served as a head coach of bronze medalist women team in the 68th Senior National Basketball Championship in December 2019. He also awarded with Major Dhyan Chand and Galavutka's Khel Ratna Award for promotion of sports coaching 2015 and 2016. He achieved the Super Rendener Award of Audax Club Parisien for completing 200, 300, 400 and 600 kilometer cycling expenditure 2019. So with all this, sir, I would like to welcome you also on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India, Lakshmi Bai National College of Physical Education, and on my personal behalf. I would also like to welcome all the participants in this program. So now the stage is yours, sir. You are going to empower the participants. So I would like to welcome you all to take over the session, sir. So we have a co-panelist also who is there for the third session. Mr. Ravi is also. Okay, I would like to welcome Ravi Raj Purohit sir also in this program. Yeah, I welcome you, sir. Yeah. Okay. So shall I start? Yes, sir. Yeah. Good morning, everyone. Thank you, Dr. Prajapati. So between me and Dr. Jhanjharia, we are going to take this session. So we would like to thank Ministry of Youth Affairs and Sports Authority of India, and Sai LNCB Trivandrum, and Dr. Kishore also for giving us this opportunity. So today is the last day. It's a very sentimental day also because it's going to end. So yeah. So I'm going to share the screen. Before I start out, I just want to give a small announcement to all the participants. As a course coordinator, I just want to give this announcement to all the participants. So tomorrow at 5 o'clock, we are going to have a valedictory function for all the batches. Please come through the same link. So look for the valedictory function. So we'll have it posted today. So you can come through the same website.
So participation certificate will be given to everyone who has attended the session so far. Attendance will be mentioned in the participation certificate. So all those who attended full, so it will all be mentioned, the attendance. And it will be given by the 15th, all these things will be given. There will be online examination on the 30th and the 31st of July. So we will put it on both the dates. The details will be provided by email. The material will be provided by 15th of July. The syllabus, all the videos so far we are going to post it, and curriculum will also be there. So all those things will be provided to all the participants. You will get about 15 days to prepare for the examination. And those who appear in the examination will be eligible for the second phase, that is on-ground activity or advanced program. That will be defined because we do not know about COVID-19, what is going to happen. So maybe 3 months hence or whatever, whenever we have the second phase, all those who appear in the examination will be eligible for the second phase. So you need to clear. But anyone who has participated in this thing will get the participation certificate. I'll make the same announcement at the end. Okay, so today this is an important thing, fitness protocol for teachers and parents. Very important. They are the ones who actually make children, who groom the children in school. It's very important that both of them, they have their role. This is why fitness is important in India. Because according to WHO report, 61% of all deaths in India are due to non-communicable disease. That's very interesting because this is all about lifestyle diseases. Whether it is nutrition or inactivity, sedentary behavior. That's what Dr. Usha had talked about sedentary lifestyle. She talked about importance of fitness, physical fitness. That is how we started out in the beginning. Today we are going back to day number 1. In fact, obesity for 12 to 19 years have tripled since 1970. 70% of the city people are overweight in India. 1/3 of the people are going to have diabetes by 2030. If you don't check, 70% Indians do not exercise regularly, and 62% Indians do not monitor their diet. They keep binging. I mean, they don't look at dinner as something which should be you should be eating very sparingly or eating early. They don't look at any of them. So many obese families are like that. In fact, when you go to a school, you find obese kids. Most likely, the parents were also obese. You can actually make out when children come for PTM, you can make out. What is the right age for fitness? Fitness, you can be fit at any age. खाली बच्चों को fit नहीं होना है. आप जो घर पे रहते हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते हैं, सबको सब फिट हो सकते हैं, छोटे बच्चे हो, बड़े हो. So whether we are at home, whether we are at school में बच्चे होते हैं, teachers होते हैं, staff होते हैं. When we say teacher, I mean staff also. It is not teaching staff also. Everyone is a teacher. तीसरा है जो जॉब में काम करे कॉर्पोरेट्स में, so they can also be fit. And retire जब हो जाते हैं 60-65 plus, 60 years में या 65 में जब भी रिटायर होते हैं हम, रिटायरमेंट के बाद भी फिटनेस है. डॉक्टर किशोर ने बड़ा अच्छा बोला था कि जो मूवमेंट इज समथिंग दैट स्टार्ट्स फ्रॉम होम टू टोम. जब बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट के अंदर से वो he or she starts kicking until the end of life. The child grows to a youth, then becomes a senior citizen, and then becomes a very senior citizen, and whenever till death he can stay fit. There are a lot of people 95-100 years में वो fit रहते हैं. So fitness is for everyone. And fitness is easy. It is fun. You don't need any equipment. आप walking कर सकते हैं, running कर सकते हैं, simple jogging कर सकते हैं, छोटे-छोटे games कर सकते हैं. आपको कोई equipment की जरूरत नहीं है. Jhanjari is okay. Now we all are concerned about fitness. So basically, what is physical fitness? Physical fitness is your ability to do your daily routine work with ample of energy, and you should have some energy left out to meet some emergency requirements. So that is the physical fitness. You are doing your morning to evening activity, whether it is your household work, whether it is you are going to school, whether you are going to office. Whatever you are doing, you should have plenty of energy in you, and you are not feeling fatigued. And at the end of the day, when you are reaching home, you are sharing quality time with your family. That's talk about your fitness. So, and there are so many components that we need to develop in fitness. That is your speed, strength, endurance. That is required, means all the attributes of your fitness, whether you are a teacher, whether you are a parent,
whether you are a kid, you need to have plenty of fitness so that you can sustain in your profession, in your society, in your home. So this is required. So we should understand the concept of fitness. Next slide, please. Now, World Health Organization has certain recommendation that is for age appropriate activities. So you are seeing on the screen 18 to 64. So what WHO said that all the adults, the recommendation is for adults, those who are about 17 to 18 years of age, they should do moderate intensity aerobic exercises at least for 150 minutes to 300 minutes. This is the minimum recommendation given by the WHO. Apart from this, they can also go for 75 to 150 minutes of vigorous intensity aerobic exercises. Aerobic exercises are important because it maintains, it improves your blood circulation, it improves your heart function, it improves your all your systems of your body, it activates everything. That's why the focus is on aerobic capacity. Apart from this, they should be also doing some kind of strengthening activities, strengthening for their all major muscles, at least twice a day or more than twice a week, or more than that also is if they can go, is recommended. They should go for strengthening exercise for upper body, for lower body, for their core muscles, for their back muscles, shoulder muscles. These are the major muscles. So an adult is doing these two. One is the aerobic exercises and one is the minimum strengthening exercises. Then he can get all the benefits of health. So this is about the WHO recommendations. Next slide, please. Now, what are the health benefits of being physically active? This is very well talked about. Madam Saroj, who is the Dean NCRT, he in her presentation, she said that she's talked about a concept of a fit school, whole school, whether it is parents, whether it is staff, teacher, principal, kids, everybody should be involving in some kind of physical activity. So and apart from this, our Fit India directors, Mr. Rohit Khanna, Madam Ekta, they also talked about some sort of fitness at every age. They said that you can start your fitness at any age. Well, so we need to understand what are the benefits of doing the fitness. So we can avoid all kind of diseases that are lifestyle diseases. We should say your arthritis problem, your high blood pressure problem, your heart disease, diabetes. These days we are facing all the lifestyle problems. So अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर लें और उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वी कैन अवॉइड लॉट ऑफ रिस्क इन आवर डे टू डे लाइफ. Like if we are doing some kind of physical activity, we can avoid the risk of hip and vertebral fracture. We can exhibit a higher level of cardiorespiratory and muscular fitness, or achieve a good and healthy weight. That is very much required. If we have a good healthy weight, a good body composition, it serves many purposes in our day-to-day life. So it is important we should be involved in some kind of physical activity. Next, Sujit. Yeah. So here, no, I think you are right, Dr. Jajiria. So basically what Saroj ma'am, Ekta ma'am, Rohit Khanna sir, all of them they talked about was basically about as part of the Fit India movement, the vision of Prime Minister is to make sure that fitness is integral part to every Indian.
So when we look at a school system, who are the stakeholders in a school system? The stakeholders in the school systems are teachers, students, parents, and the community in and around. So so if you have a structured program where and you can see that fitness is so much fun, it's so easy, it's for everyone. So so it is important that we have a good physical education program. We talked about the entire physical education program. We talked about community sports coaching, community engagement. We talked about physical activities before and after school, staff involvement, and physical activity during the school. मतलब classroom के अंदर हो, classroom के बाहर हो, recess period हो, free play हो, कोई भी तरीके से substitution period हो, तो हम कह रहे हैं कि एक comprehensive school physical activity program होना चाहिए. And this is a slide from Saroj ma'am's presentation, where we are talking about physical fitness for all. And उसमें हमने ये भी बोला था, children, staff and parents, everyone would love their own fitness assessment report. So this is what, ये अभी in the next, the reason why we actually moved this presentation from the 12th of June to today was that we were expecting that the Fit India protocol for different age groups will be published. तो ये अभी Fit India mission ने एक वो बना दे, कमिटी बना दे, एक्सपर्ट कमिटी बना था, जिसका मैं भी एक मेंबर हूँ. And second session में डॉक्टर दीपक है, के दीपक. He was the chairman of the committee, एम्स के डायरेक्टर, एम्स के प्रोफेसर हैं. So there were people from Ministry of Health, Ayush, Fit India, Sports के हैं, National Institute of Nutrition, Safdarjung, all specialists were there. And so they have come up with the Fit India protocol for different age groups. 3 major age groups हैं, children जो 5 to 8 years है, 9 to 18 है. अभी हमारा जो last की 2 sessions है, Friday and Saturday, we talked about Khelo India fitness protocol for all school going children. So the Fit India protocol is exactly the same as 5 to 8 years or 9 to 18 years के लिए, exactly same battery of test है. So this is just a recap of that. Second हो गया जो adults है, 18 से 65 साल. 18 से 65 साल है, those that is adults. And 65 जो है उसको हम seniors कहते हैं. WHO का नया definition है कि जो seniors है वो 65 के ऊपर ही है. Everyone else is an adult. So from that point of view, जो 18 से 65 है, that is a battery of test जो हमारा parents and teachers जो होंगे, वो बच्चे कम 26 साल से लेके 50-55 तक हो सकते हैं mostly. So that is a battery of tests that we are going to talk about it today. These are the battery of tests जिसमें हमारा 3 टेस्ट है 5 to 8 years के लिए, 9 to 18 के लिए 6 टेस्ट हैं. जो बैटरी ऑफ टेस्ट है 18 to 65 है, उसके अंदर 6 कैटेगरीज हैं, और इसमें 2 कैटेगरीज हैं जिसमें 2 टेस्ट है. बैलेंस है जिसमें 2 टेस्ट है, और मस्कुलर स्ट्रेंथ में उसमें 2 में से कोई भी टेस्ट कर ले. 65 के लिए भी जो है, वी हैव अ बैटरी ऑफ 5 डिफरेंट कैटेगरीज. तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो ये है जो हमने देख चुके हैं ऑलरेडी. जस्ट रिकैप कि BMI कॉमन है 5 to 8 years के लिए, और 9 to 18 के लिए, और 9 to 18 के लिए 5 टेस्ट है, और जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस टेस्ट जो है वो 5 to 8 years के लिए. बाकी मस्कुलर स्ट्रेंथ, उसके एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड जो है वो 9 to 18 के. We have already seen all of that. So today we are going to talk about this. And इसमें Dr. Jajaria is going to explain this test. So I'm just giving you a snapshot कि कौन सी टेस्ट होने वाले जो फिट इंडिया के प्रोटोकॉल है. अभी आज से उसका शूट भी चल रहा है, जो वीडियो के शूट चल रहा है. आज से 2 हफ्ते के बाद उसके वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगे. So when we give you the curriculum, we'll also be sharing the videos of this test also, जो इंडियन वीडियोस है. आज उसके अभी जैसे मैं देख रहा था, अभी 15 मिनट पहले उसका शूट भी स्टार्ट हुआ है. अनफॉर्चुनेटली जो फिट इंडिया के CEO है मिस्टर रोहित खन्ना, उनको COVID-19 पॉजिटिव थे, तो 15 दिन के लिए वाज क्वारंटाइन. सो थोड़ी डिले हो गई है. तो फिट इंडिया फिटनेस असेसमेंट टेस्ट फॉर एडल्ट्स जो पेरेंट्स एंड टीचर्स के लिए एप्लीकेबल है, दिस बैटरी ऑफ टेस्ट वो है 18 to 65 में. ये जो कॉलेज में जितने हैं, यूनिवर्सिटीज में, उनके लिए भी एप्लीकेबल है. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीवन, जो स्कूल से पास आउट होकर कॉलेज में चले जाते हैं, जो बैचलर्स और मास्टर्स कर रहे हैं, इनिशियल एज ऑफ जॉब्स भी है, उन सब के लिए भी एप्लीकेबल है. 18 एंड अबव है ये बैटरी ऑफ टेस्ट है. सबकी बेंचमार्क्स अलग अलग है.
हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग बेंचमार्क है, 18 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 एंड 55 to 65। ये सारे बेंचमार्क्स अलग अलग है लेकिन टेस्ट सेम है। तो so this is to give you a this thing। तो ये 8 टेस्ट है। एक पहला हो गया BMI, सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी जो वी रिच, ये वी सिट रिच है, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास वो है, हम ये नौकासन कर रहे हैं और 1 मिनट पार्शियल पुश कर्लअप्स है। ये हमने 30 मिनट्स का कर्लअप किया था वहां पे जो छोटे बच्चों के लिए। और फिर उसके बाद हो गया पुशअप्स और मॉडिफाइड पुशअप्स। फिर हम कर रहे हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस जो पहले हमें 600 मीटर का दिखा था, इसमें 2 किलोमीटर वॉक या रन है। फिर बैलेंस के लिए वृक्षासन है जो ट्री पोज है और फ्लैमिंगो बैलेंस है। अगर आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि जो नौकासन और वृक्षासन है ये कभी इंटरनेशनल बैटरी ऑफ टेस्ट में नहीं है। आज इंडिया वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस टू, वी आर इंक्लूडिंग दिस, क्योंकि हम योगा कर रहे हैं। तो ये हमने फिट इंडिया ने ये डिसीजन लिया था कि क्योंकि इक्विवेलेंट टेस्ट है, नौकासन कर लें या पार्शियल कर्लअप कर लें, इक्विवेलेंट है अगर इसका आउटकम सिमिलर है। सिमिलरली जो वृक्षासन है और फ्लैमिंगो बैलेंस है, आउटकम काफी हद तक सिमिलर है। तो इसको हमने इंट्रोड्यूस किया। हमारे पास का कोई बेंचमार्क्स अभी है नहीं इन दोनों टेस्ट का, नौकासन और वृक्षासन का, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे पास 1 लाख लोगों का असेसमेंट का डेटा आ जाएगा नौकासन और वृक्षासन का, तब हम उसका बेंचमार्क्स भी बना लेंगे। तो ये 2 टेस्ट है जिनके बेंचमार्क्स है नहीं, लेकिन हम टेस्ट करा रहे हैं सो दैट वी नो हाउ मच टाइम दे आर डूइंग बेस्ड ऑन द डेटा दैट वी कलेक्ट फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। तो हम कर सकते हैं। जो 5 to 18 का मैंने दिखाया था, मैं आपको जस्ट टू गिव यू दिस थिंग, हमारे पास 55 लाख डेटा केंद्रीय विद्यालय से और 22 लाख डेटा खेलो इंडिया से है। हमारे पास ऑलमोस्ट 77 लाख डेटा पॉइंट्स है 5 to 18 ईयर्स के लिए। हम ये चाहते हैं कि जो 18 से 65 है, जब भी हमारे पास 1 लाख का डेटा पॉइंट हो जाएगा तो हम नौकासन और वृक्षासन का भी इंडियन बेंचमार्क बनाएंगे। सभी का इंडियन बेंचमार्क बनाएंगे, बट ये दोनों का कोई बेंचमार्क नहीं है, तो इसलिए। तो अभी हम एक एक करके टेस्ट को देखते हैं। डॉक्टर झाझरिया जो है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जो टेस्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं उसको हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, वो जो नहीं देखे उसको हम देखते हैं। So this is the first one, BMI। ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं 5 to 8 years के लिए और ये 9 to 18 years के लिए। So the process is exactly the same। ये झाझरिया जी just a recap वैसे बता दीजिए so that we can move to the next one and how to improve। You can just talk about how to improve। Okay. So our BMI is the first indicator of your health, and we have talked about BMI, so we are not discussing this in detail, but we need to understand the importance of BMI. If we go for a healthy BMI is around 22 to 24 is a healthy BMI. Above that, if your BMI is more than 24, if you are moving towards overweight, and if then you are reaching towards 30, you are reaching to the obesity category. So, and less BMI is also not is very dangerous if you are going towards 20, 19, 18. So that is also not advisable. So it is very recommended that you maintain your BMI around 23, 24. So what we can do for this, one is exercise and one is a good nutrition. So if the combination of exercise, it is as recommended by WHO, if we do that for minimum, we can maintain that. And if we take a good and healthy diet, that also can improve your body mass index. Next slide, please. Yeah. This is a test for flexibility. Flexibility is an important component because once you lose your flexibility, it is very difficult to gain that flexibility again. So we need to do, and this is the major neglected area in fitness to the sportsmen also and to the general population, sedentary people also. So we need to do flexibility exercises also. So first of all, we should know the status of our flexibility. There are many tests. Sit and reach test is also there, but for that test we need equipments, we need a box. So this is an alternative for
sit and reach test, and this is equally good. So let us see how this test is performed. Can you play video, Mr. I'm Sujit? playing. Yes, I'm playing. To perform the V-sit and reach test, put a baseline on the floor of tape and then a measuring ruler. Step by step we can probably explain. Okay, so what we need minimum equipment. One is you need a flat surface, non-slippery. Next is you need a tape that you can paste on the ground, and one measuring tape is required. These three equipments are required to have this test. Or measuring tape perpendicular to create a cross. Line your feet up with the baseline, making sure that फिर what will do, आप बेस लाइन जो रेड टेप आपने मार्क की है उस पे आप अपने दोनों लेग्स को थोड़ा सा वी शेप में स्प्रेड करके और आप उसको मार्किंग लाइन के जस्ट टच करके हल्का सा उसको रखेंगे, ठीक है। और फिर आप मेजरिंग टेप अपने आप सेंटर में रखेंगे और so that you can measure ki what up to which range you are going, and from this position you will be bending forward, that we can see in the video. the heels are touching, and then you want them somewhere about 8 to 12 inches apart. Place one hand on top of the other, make sure the fingertips are level and that you're not reaching one way more than the other. And you get 3 practice attempts. Okay, now when you are आप जब ऐसे बैठ गए हैं इस पोजीशन में, then you will put your hands, both your palms together, one over the other, और फिर आप उसको स्ट्रेच करेंगे और आप उसको 3 बार स्ट्रेच करेंगे और व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक आप जाते हैं वो आप मेजर करेंगे. दैट विल बी द पॉइंट ऑफ योर फ्लेक्सिबिलिटी. Keeping the hands level, you lean forward, touching the measuring tape as far as you can reach, regardless of whether this is before or after the baseline. After 3 practice attempts, reach as far as you can, hold, and then measure the result. And let me tell you, this is a standardized test. It is followed worldwide. So you can strongly recommend and use this test. ये इसका मेजरमेंट जो है ना फाइनल पॉइंट का बता दीजिए कैसे स्ट्रेच करके. फिर ये जो when you have taken your final measurement, up to which point you are reaching, so वो जो difference है, that is your flexibility mark. तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं. यू कैन डू सम एक्टिविटी और थोड़े दिन बाद में फिर आप उसको चेक कर सकते हैं कि वेदर यू आर इम्प्रूविंग योर फ्लेक्सिबिलिटी और नॉट. The way we score this is taking your measurement and doing it relative to the baseline. So in this case, I reach past the baseline, so I'll have a positive score of 4.5 inches. If you're behind the line, it will be a negative score. तो ये वाला बता दीजिए जो लाइन है, लाइन से जो डिफरेंस को बता दीजिए, डिफरेंस जो है ना. अगर लाइन से आप पीछे रहते हैं तो आप नेगेटिव साइड में हैं और लाइन से आप जितने आगे जा रहे हैं 1 सेंटीमीटर, so we'll have a positive score. तो इसमें बेसिकली जो है 28 इज अ बेसलाइन. 28 को आपने बेसलाइन की तरह किया और जब आप हाथ स्ट्रेच करेंगे तो ये 28 इज अ बेसलाइन एंड जितना स्ट्रेच करेंगे जैसे ये आया 82 पॉइंट समथिंग. ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम इंडिया में मेजर करते हैं. तो वो जो मेजरमेंट है, अगर ज्यादा स्कोर है, फाइनल स्कोर है, सो फाइनल स्कोर आपको डालना है और जो बेसलाइन है उसको डालना है. तो अगर ये 28 से कम आता है तो आप उसको 26 डालेंगे और जो 28 इज अ बेसलाइन. सो दो स्कोर्स एप्लीकेशन में डालेगा. क्योंकि अभी वो वीडियो बन रहा है तो मैं आपको बस बता रहा हूँ 2 स्कोर्स हैं. एक तो हो गया जो बेसलाइन है, बेसलाइन में इस केस में 71 है, 71 सेंटीमीटर जो दिख रहा है, और जो उसने स्ट्रेच किया वो 82 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच किया है. सो 82 - 71 हो गया इसका स्कोर, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है
वो 82 minus 71 that is 11 centimeters. अगर वो नीचे की तरफ होता तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो माइनस स्कोर में आता फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. तो इसकी कैसे इम्प्रूवमेंट होगा वो भी बता दीजिए. तो फ्लेक्सिबिलिटी को improve करने के लिए you can do lot many exercises, lot many suggested physical activities. You can see हम योगा आसनास कर सकते हैं, हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, हम चक्रासना है, हलासना है, पश्चिमोत्तानासन है, त्रिकोणासन है, ताड़ासन. देयर आर सो मेनी. आप पिलाटेस एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं. You can do partner stretching also. You can do assistive flexibility exercises. So lot many things are there that you can do around your trunk, you can do around your hip joint, knee joint, shoulder joint. So this is very important that you do the flexibility around your knee joint, your hip joint and your shoulder joint. These are the three major areas around which you should have plenty of flexibility, because it allows lot of free movements in your day-to-day life. Okay, so that's how flexibility is important. Next, you for your core strength, your muscular strength is also important, because whatever you are eating, if we have a strong core, we can improve all the functions of the body. So your core strength this is the Noka Asana. You can see boat pose, in which you can develop your core. You will lie down on the floor. We are not playing the video, it will take time. You are lying down on the floor and slowly you are lifting your leg. Your legs should be straight, and then you are raising your hand and reaching to this position, and you will hold it for 10 seconds. Minimum is 10 seconds, and you can go for up to 60 seconds depending upon your level of strength in the core. So this is very important to have the core strong. So there are so many exercises that you can do when you are seeing this. So I'm going to demonstrate how to do the boat pose. So you've probably done this. In yoga, it's a pretty advanced ab exercise. So if you're not experienced, I wouldn't just jump into it. I'd start out with some planks, maybe side planks, and then progress from here. If you have lower back issues. कुछ बता रहे थे? Should I play? Definitely be aware of that also when you're doing this pose. So you want to make sure that your legs are coming up. Try to keep them straight. You're leaning slightly back. I like to say you want to lead with your sternum. So this is your sternum. Your arms are slightly off the ground, and you're just holding this position. Okay, so you can see you will lie down flat on the floor, and then slowly you are lifting your leg and making a V position, making a little bit V position, and then you will hold this position for 10 seconds. So this is minimum to measure your core strength. Yeah. So I'm kind of on my sacrum, which is kind of like your tailbone in the back, and you're just staying upward like this. Notice. हाँ, तो आप इस पोजीशन में आप अपना जो सैक्रल रीजन है उसके ऊपर आपका पूरा बॉडी का वेट उसके ऊपर आएगा, एंड देन you are taking your hands by the side and slowly you are taking them up, and the final position you will be holding for 10 seconds. आपको 10 सेकंड तक कम से कम होल्ड करना है. आप उसको बढ़ा भी सकते हैं धीरे धीरे, तो जैसे जैसे आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है. Notice how I'm shaking because my abs are working to engage the whole time. So your shoulders don't want to be rounded forward like this. You want to be up, chest up, sternum, lead with it, and make sure you're breathing easy. Start at 10 seconds and then progress from there. ठीक है, तो आप जब V पोजीशन में आएंगे तो आपके शोल्डर थोड़े ड्रॉप रहेंगे, चेस्ट थोड़ी अप रहेगी, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो, और आपका you will feel strength on your abdominal region में आप strength
Okay. 5. If that's too easy, then go for 30 and work your way up to 1 minute. And that's how you do a boat pose. Right. Improvement. हाँ, तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए देर आर सो मेनी एक्सरसाइजेज. आपको कोर स्ट्रेंथ के लिए प्लैंक्स कर सकते हैं, प्लैंक कर सकते हैं, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर सकते हैं, और हिल वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, डांसिंग, जंपिंग, और देर आर सो मेनी आसनास. नौकासन तो है ही, सलवासन भी से भी कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और ताड़ासन है, वृक्षासन है, त्रिकोणासन है. So these are Surya Namaskar also can help a bit if because you have lot of forward and backward bending to improve your core strength. तो ये आप कर सकते हैं इससे. नेक्स्ट, ये कोर स्ट्रेंथ के लिए एक और टेस्ट है जो पार्शियल कर्ल अप. दोनों टेस्ट, बोथ द टेस्ट आर इक्वली इफेक्टिव. इसमें आप 60 सेकंड तक के टाइम में आप कितनी कर्ल अप करते हैं, दैट विल बी योर स्कोर. एंड यू, इसके लिए भी आपको मिनिमम सरफेस चाहिए, एक फ्लैट कुशन सरफेस आपको चाहिए, 2 पैरेलल स्ट्रिप्स चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, सो दैट यू कैन मेजर द टाइम, और आप इसको इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक सिटअप्स की तरह ही होता है. इसको आप इम्प्रूव करने के लिए भी सिमिलर एक्सरसाइजेज, क्योंकि ये कोर के लिए ही है, तो उसके लिए जो हमारे बोट पोज के लिए थे वही सिमिलर एक्सरसाइजेज इसके लिए यूज हो सकती हैं, आप इसको स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए. ये ऑलरेडी हमने 5 to 18 के लिए हमने देख चुके हैं, तो इसीलिए इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं. पार्शियल कर्ल अप कैसे कराना है, इट्स सेम एज 5 to 18 के लिए हमने कर चुके हैं. द ओनली डिफरेंस इज उसमें 30 सेकंड के लिए था स्कूल के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए हमने 60 सेकंड है ये. नेक्स्ट. yes. पुशअप्स का. ओके, सो नेक्स्ट इज द, यहाँ पे हमने कोर स्ट्रेंथ की बात की. अब हम करेंगे अपर बॉडी स्ट्रेंथ की हमारे जो शोल्डर्स हैं, ट्राइसेप है, ठीक है, और जो पेक्टोरल्स मेजर है, इन मसल्स के बारे में बात करेंगे. तो इसके लिए जो टेस्ट है वो है पुशअप्स टेस्ट, ठीक है. और ये मेल के लिए स्ट्रेट पुशअप हो सकते हैं, फीमेल के लिए वी कैन गो फॉर मॉडिफाइड पुशअप, ठीक है. तो इसके लिए आप कितने पुशअप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल बी योर स्कोर. आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए, चाहे आप किसी रूम में हो, किसी आप जिम में हो, ठीक है. बहुत इजीली एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, और बस थोड़ा सा आप वार्म अप आपको चाहिए और आप इसको कर सकते हैं. और अब फिर इसको इम्प्रूव करने के लिए आपके पास यू कैन डू लॉट मेनी एक्सरसाइजेज. आप स्टेयर में तो लेग्स का आपका वर्कआउट होता है, आप पुलअप्स के लिए जा सकते हैं, आप डांस एरोबिक एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, आप प्लैंक्स कर सकते हैं, और फिर आसन्स हैं जिनके अंदर आपके अपर बॉडी इन्वॉल्व होती है. दीज आसन. नेक्स्ट. Next is the cardiovascular endurance test. Cardiovascular endurance test बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारे इंटरनल फंक्शंस के लिए, क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो पूरा इसमें इन्वॉल्व है, और ये आपकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पे जो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट है वो 2 किलोमीटर रन एंड वॉक. इसके अंदर आप 2 किलोमीटर तक आपको रनिंग करनी है. यू कैन वॉक ऑल्सो, आप बीच में वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 किलोमीटर कंप्लीट करनी है. कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं आप, वो आपका स्कोर होगा. तो इसके अंदर आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए. पहले तो आपको एरिया चाहिए जो प्रॉपरली मार्क्ड हो. दैट कैन बी ट्रैक, 400 मीटर ट्रैक, 200 मीटर ट्रैक, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप कर सकते हैं. रोड में भी कर सकते हैं, जैसे जो भी कंफर्टेबल. कोई फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, आप बस उसको मेजर कर लीजिए एरिया को, और आप उसमें कर सकते हैं. आपको स्टॉप वॉच एक चाहिए टू मेजर द टाइम, एक विशल मार्कर स्टार्ट करने के लिए, मार्कर आपको चाहिए स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट लगाने के लिए, और फिर इससे आप अपना ये जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है उसको आप चेक कर सकते हैं.
तो कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत से मेथड हैं, ठीक है। इसमें आप यू कैन गो फॉर साइकिलिंग, यू कैन गो फॉर स्विमिंग, आप कपाल भाती कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, और आप सूर्य नमस्कार के रिपीटेशंस कर सकते हैं। मतलब कार्डियोवास्कुलर आपकी एंडोरेंस आपकी तब इम्प्रूव होती है जब आप लो इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस यू आर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज स्लो जॉगिंग कर रहे हैं, घर पे आप म्यूजिक के ऊपर डांस कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं, एरोबिक कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, तो these all can improve your cardiovascular health. Yes. और ये उसमें छोटे बच्चों के लिए 600 मीटर का था, और यहाँ पे हमने इसको 2 किलोमीटर की कर दिया है। ओके, सो नेक्स्ट इज द बैलेंस टेस्ट। आप देख रहे हैं ये वृक्षासन है, ट्री पोज इसको बोलते हैं। ये बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है, इसको आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, सीधे खड़े होना है और बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका जो दूसरा लेग है, कोई राइट और लेफ्ट, आप दोनों पैरों पे इसको करना है। वो आप उसको अपने नाई के पास लाएंगे और अपने हाथ ऊपर ले जाके यू विल मेक स्टैंड स्ट्रेट। इट इज द फाइनल पोजीशन, और इस पोजीशन को आपको एटलीस्ट 10 सेकंड होल्ड करना है। जब आप फाइनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं तो यू विल होल्ड इट फॉर 10 सेकंड। धीरे धीरे आप ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। एक बार वीडियो देख लेते हैं थोड़ा सा। Bring the right foot against your left thigh. Hands. तो आपको सीधे खड़ा होना है, अपना एक कोई भी पैर राइट और लेफ्ट क्योंकि दोनों साइड से होना चाहिए, उसको अपने थाई के पास ले जाएंगे और उसको वहां पे आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे। In front of you in Namaskar position. ठीक है, फिर आप नमस्कार पोजीशन में आएंगे। आपका पैर जो फोल्डेड लेग है वो बिल्कुल आपके डायगोनल साइड में रहेगा। वो न तो आगे आना चाहिए, पीछे तो खैर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई बार ये एक कॉमन मिस्टेक होती है कि आप जब पैर फोल्ड करते हैं तो वो थोड़ा सा आगे होता है। तो इट शुड नॉट बी इन फ्रंट, इट शुड बी ऑन लेटरल साइड ऑफ योर बॉडी। And stretch your arms up towards the ceiling. और यहाँ से आप अपने हाथ को इस नमस्कार पोजीशन से आप पूरा स्ट्रेच करेंगे। आपकी एल्बोज एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एंड यू विल पुल योर बॉडी अपवर्ड्स, एंड देन यू विल मेंटेन द फाइनल पोजीशन फॉर 10 सेकंड, एंड देन यू विल रिपीट द अदर साइड। Hold the stomach. Stay calm. Maintain balance. Slowly bring your hands in front of your chest and ease your right leg down. Repeat the same on the other side. Breathe in normally. Keep your eyes open. Focus on a spot in front of you to maintain balance. ठीक है, तो ये आप दोनों साइड में रिपीट करेंगे। आपको एक सामने पॉइंट पे फोकस करना है और अपने बैलेंस को मेंटेन करना है। सो इट इज अ वंडरफुल बैलेंसिंग टेस्ट you can do to check the balance of your body. Breathe normally with your eyes open. Slowly bring your arms down and relax. Okay, so this is वृक्षासना। तो इसके बहुत बेनिफिट हैं, हमें इसको परफॉर्म करना चाहिए, बैलेंस के लिए इसको यूज करना चाहिए। और आप जो भी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको स्टेबल करती हैं, वो एक्सरसाइजेज आपको करनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना चाहिए। आप ताड़ासन को यूज कर सकते हैं,
वो भी बैलेंस के आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि अब आप अपने टोज के ऊपर आते हैं और बॉडी को स्ट्रेच करते हैं. तो यू शुड डू सच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज एंड यू शुड रेगुलरली टेस्ट योर बैलेंस. इसमें और जो फाइनल पोजीशन है उसके बाद कम से कम 10 सेकंड होल्ड करना है फाइनल पोजीशन के बाद. सो द चेक इज द फाइनल पोजीशन के बाद आप कितना सेकंड तक होल्ड कर पा रहे हैं. Next. Okay, so this is another test for balance, Flamingo balance test. ये भी वर्ल्ड वाइड बहुत यूज होता है. तो इसके अंदर भी एक बॉक्स के ऊपर उसको जो भी जिसको भी टेस्ट मेजर करना है वो एक बॉक्स के ऊपर छोटा बॉक्स होता है, उसके ऊपर एक खड़ा हुआ बीम या तो ब्रिक के ऊपर. हाँ, बीम या ब्रिक जो भी है. इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं सर एक बार. ये देख चुके हैं उन्होंने एक्चुअली. ये जो हाँ, ये पहले 5 to 18 के लिए हो चुका है. हाँ. तो आप कितनी बार बैलेंस लूज करते हैं वो इसमें मेजर करना है, और 60 सेकंड में तक आपको इसको करना है. 60 सेकंड में आप कितनी बार होल्ड कर रख रहे हैं. इफ यू कैन होल्ड फॉर, अगर आपके 15 फॉल्स हो जाते हैं इन 30 सेकंड, तो आपको वो टेस्ट से टर्मिनेट किया जाता है. द टेस्ट इज नॉट मींस योर बैलेंस इज नॉट सक्सेसफुल. तो आपको इसको ट्राई करना चाहिए. इसके लिए भी आपको सिर्फ एक नॉन स्लिपरी सरफेस चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, और एक बीम या एक छोटा ब्लॉक या ब्रिक यू कैन यूज, उसके ऊपर आप इसको कर सकते हैं. तो एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत इजी है इसको करना, और ये आपके बैलेंस को इम्प्रूव करता है. यू शुड प्रैक्टिस. आप एक फुट पे, राइट फुट पे, लेफ्ट फुट पे, दोनों पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप इसको इम्प्रूव करने के लिए यू कैन वॉक ऑन योर हील्स, यू कैन वॉक ऑन योर टोज, और आप अपने साइड जो आपके फुट का सरफेस होता है, आप साइड पे भी इनवर्ड और आउटवर्ड भी वॉकिंग कर सकते हैं. स्ट्रेट लाइन में वॉक कीजिए, आप स्किपिंग कीजिए, हॉपिंग कीजिए, आप बीम के ऊपर वॉक कर सकते हैं, आप किसी लाइन के ऊपर वॉक कर सकते हैं, जिगजैग लाइन के ऊपर वॉक कर सकते हैं. सो यू कैन इम्प्रूव योर बैलेंस इफ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज. यस. सो थैंक यू सो मच. तो हमने 8 टेस्ट को देखा है. उसमें से कुछ जो 2 इंडियन टेस्ट है उसमें जो सबसे बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक नौकासन है और एक वृक्षासन है. दैट इज बोट पोज एंड ट्री पोज. ये दोनों एडिशनल ही है. सो आई थिंक दैट विल बी इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड जब भी हमारा बेंचमार्क बन जाएगा. बाकी हम सारे टेस्ट देख लिए हमने. उसमें से काफी सारे टेस्ट जो ऑलरेडी हमने छोटे बच्चों के लिए कर चुके थे, जैसे पार्शियल कर्ल अप हो गया, फ्लैमिंगो बैलेंस हो गया, पुशअप्स हो गया, पार्शियल कर्ल अप का देख लिया, बीएमआई के देख लिया. ये सारी चीजें हमने देख चुके थे. जो एडिशनली जो हमने देखा वो वी सिट रीच का हमने देखा. हमने नौकासन देखा, वृक्षासन देखा. ये 3 चीजें हमने नए चीजें देखे हम कि कैसे कराना है उनको. और नौकासन, तो ये चीजें हमने देख लिया. ये जो 65+ है, टिपिकली ये ग्रैंड पेरेंट्स है हमारे कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ पे ये मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है फिटनेस प्रोटोकॉल फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स. तो मैंने 65 तक का आपको दिखाया. और 65+ के लिए ये प्रोटोकॉल से जब भी फिट इंडिया का एप्लीकेशन लॉन्च होगा आप देखेंगे कि ये सारी चीजें भी उसमें होंगे, जिसमें अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, बैक स्क्रैच टेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी है, चेयर सिट एंड रीच है. तो सिट एंड रीच का टेस्ट आप देखेंगे बदल गया ओवर पीरियड ऑफ टाइम. फिर हम लोअर बॉडी स्ट्रेंथ और मस्कुलर एंड्योरेंस को देखने के लिए चेयर स्टैंड टेस्ट है. तो आपको चेयर में बैठेंगे, उठेंगे, फिर उसके बाद वापस करेंगे. आप कितने देर तक कितने बार कर पा रहे हैं वो उसका है. एजिलिटी और डायनेमिक बैलेंस के लिए 8 फुट अप एंड गो वो है. चेयर से उठो, आप उसके आप 8 फुट दूर है कोन, उसके फिर वापस लौट के आओ, फिर ये करो. और 2 मिनट स्टेप टेस्ट है. ये है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस के लिए. ये वाला जो है बड़ों के लिए 65+ के लिए. सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू डिटेल बिकॉज़ आज को टॉपिक वो नहीं है. बट ये सारी चीजें अवेलेबल होगा 15-20 दिन के बाद फिट इंडिया की वेबसाइट में होगा. आप न्यूज में भी देखेंगे अब जब भी ये आएगा. तो आप जितने लोग ये करें उनके लिए एडिशनल है. अभी हम देखते हैं हाउ टू इम्प्रूव फिटनेस, सम रिकमेंडेड एक्टिविटीज. आप एक्सप्लेन जाजिरिया जी. सो फिर ये फिट इंडिया ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं हमें अपने जो फिटनेस कंपोनेंट्स हैं, सारे कंपोनेंट्स जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, एजिलिटी है, स्पीड है, कोऑर्डिनेशन है, इन सब को इम्प्रूव करने के लिए. क्योंकि
हमें एक कुछ रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज करना चाहिए और हमें फोकस रहना चाहिए कि हमें हमारा पैरामीटर्स क्या है। आप पता लगाइए कि आपका कौन सा पैरामीटर वीक है, तो उस पैरामीटर पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले जैसे है फ्लेक्सिबिलिटी के बहुत से मेथड है इंप्रूव करने के लिए। आप स्टैटिक स्ट्रेचेस के लिए जा सकते हैं। पहले आपको स्टैटिक स्ट्रेच ही जानना चाहिए, और जब आपका बेसिक स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो जाए और प्रॉपर वार्म अप के बाद आप में अगर वहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ भी है तो आप डायनामिक स्ट्रेचेस के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं तो आप स्टैटिक स्ट्रेचेस कीजिए। आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं, इसमें ध्यान रखें जर्की मूवमेंट ना हो, ठीक है। बहुत स्लो मूवमेंट होनी चाहिए क्योंकि डैमेजेस होने के चांस हैं। आप काफ स्ट्रेच कर सकते हैं, चाइल्ड पोज, बच्चा के जिस पोज में रहता है वैसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। नी को पुल कर सकते हैं, बेंड डाउन कर सकते हैं, आप अपनी आर्म को स्ट्रेच कर सकते हैं, आप अपने नी को स्ट्रेच कर सकते हैं। सो मेनी एक्सरसाइजेज आर देयर, और बहुत से योगा पोजेज हैं जिनको से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर है स्ट्रेंथ रिलेटेड, आपको अपनी बेसिक एक स्ट्रेंथ डेवलप आपकी होनी चाहिए। मिनिमम स्ट्रेंथ आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए। लोअर बॉडी के लिए आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, और आप जंपिंग जैक्स कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं। और अपने एब्स के लिए आप अपने लेग रेज कर सकते हैं। स्ट्रेट लेग रेज करते हैं तो आपके लोअर एब्डोमेन पे आता है। अगर आप सिटअप्स करते हैं तो आपके अपर एब्डोमेन पे आता है। आप पुशअप करते हैं तो आपके पेक्टोरलिस मेजर, ट्राइसेप और शोल्डर पे थोड़ा इफेक्ट आता है। तो आप कर्ल अप करते हैं तो कर्ल अप में आपका कोर भी डेवलप होता है। कर्ल अप में बेसिकली आपका फोरआर्म, आपकी जो बाइसेप मसल है वो डेवलप होती है। आप प्लैंक से आप अपनी कोर को डेवलप कर सकते हैं। आप फ्रंट प्लैंक कर सकते हैं, बैक प्लैंक कर सकते हैं, साइड प्लैंक कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आता है एंडोरेंस, जो बहुत हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी इनसाइड फिजियोलॉजी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। आप स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास एरिया नहीं है कहीं जाने के लिए तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। बहुत से लोग जो घर के अंदर ही रनिंग करते हैं, ठीक है। अगर आप रूफ टॉप यूज कर सकते हैं, आप अपना बेसमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पॉट रनिंग है, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स है, जंपिंग जैक्स है, आप मार्चिंग कर सकते हैं, स्विंगिंग। आप ब्रिस्क वॉक इज एज गुड एज रनिंग। रिसर्च से प्रूव हुआ है कि ब्रिस्क वॉक से आपको वही सारे फायदे मिलते हैं जो रनिंग से मिलते हैं। और ब्रिस्क वॉक का एक ये भी फायदा है कि आप अपने जॉइंट्स को में जो रनिंग में आपके जो जॉइंट्स पे, लिगामेंट्स पे जो स्ट्रेस आता है ब्रिस्क वॉक में, वो स्ट्रेस नहीं आता। बट यू कैन हैव द सेम एडवांटेज ऑफ व्हाट यू कैन गेट फ्रॉम रनिंग। फिर कुछ आप एयर पंचेज इमिटेट कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू टू डेवलप योर एंडोरेंस। फिर हमने अभी बैलेंस के बारे में बात की थी। बैलेंस के लिए आप सिंगल लेग के ऊपर आप जैसे वृक्षासन किया, ताड़ासन किया, ये एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। और आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपकी एज, यू आर इन ए डिफरेंट एज कैटेगरी, आप फिट नहीं है इतने, तो आप स्ट्रेट लाइन पे वॉक करना भी आपके लिए आपका बैलेंस को इम्प्रूव करता है। और आप जिगजैग वॉक कर सकते हैं। आप अपना आंखों पे पट्टी बांध के भी यू कैन ट्राई वॉकिंग, यू कैन इम्प्रूव योर बैलेंस। फिर आता है योगा प्रोटोकॉल। ये 18 to 35 इयर्स ऑफ एज के लिए एक योगा प्रोटोकॉल है, जो हमें 15 मिनट का ये योगा प्रोटोकॉल है, जिसको आप अपने कहीं भी, अगर आपको स्कूल में टाइम मिलता है, घर में टाइम मिलता है, ऑफिस में टाइम मिलता है, जहां भी मिलता है, तो आप एक कम समय में इसको कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद ए प्रेयर। फिर आप कपाल भाती के 30 स्ट्रोक के 2 राउंड कर सकते हैं, 30 के 2 मिनट्स में। फिर यू कैन गो फॉर 2 मिनट्स ऑफ सूर्य नमस्कार। ये आपको थोड़ा सा वार्म अप कर देगा, आपके जॉइंट्स को थोड़ा सा खोल देगा, आपके मसल्स को थोड़ा सा लूजनिंग और स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट दे देगा। फिर आप योगा पोजेस कर सकते हैं। आप स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोलाइन, सुपरलाइन के अंदर पोज अपने योगासना के अभ्यास कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और फिर आप उसको ये आपका लगभग 7 मिनट के अंदर ये सारे आसन हो जाएंगे, 2 राउंड अगर उनके लगाते हैं तो। फिर प्राणायाम में है, अनुलोम विलोम की प्रक्रिया है। एक नाक से आप सांस लेते हैं, दूसरे से छोड़ते हैं। बहुत इजी प्रक्रिया है। इसको स्लोली करना है। 5 राउंड आप इसके ले सकते हैं। फिर आप 1 मिनट तक
मेडिटेशन कर सकते हैं। यू कैन कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, यू कैन कंसंट्रेट ऑन समथिंग, आप किसी भी एक चीज पे अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो 15 मिनट में आपको बेसिकली ये प्रोटोकॉल है। फिर आता है 35 टू 50 इयर्स। इसमें थोड़ा सा हमने जो आसन है वो थोड़े से कंपैरेटिवली थोड़े से इजी हैं, क्योंकि एज जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये भी सिमिलर ही पैटर्न पे 15 मिनट का प्रोटोकॉल है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर हमने ये 50 टू 70 इयर्स के लिए भी 15 मिनट का प्रोटोकॉल है। आप वही सिमिलर प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। फिर यू कैन डू कपालभाति फॉर 2 मिनट्स, देन सम लूजनिंग एक्सरसाइजेज। आपको नेक के मूवमेंट है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, ट्रंक के लाइट स्ट्रेचिंग मूवमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी जर्क। आपको जर्क्स उसमें नहीं देने हैं, ठीक है। और फिर आप ये योगाभ्यास कर सकते हैं। चारों उसको आप स्टैंडिंग, सिटिंग और प्रोलाइन पोजीशन के अंदर आप उसको कर सकते हैं। फिर आपका प्राणायाम है 2 मिनट के लिए। इसमें अनुलोम विलोम है। आप भ्रामरी प्राणायाम को भी, जो हमिंग साउंड करते हैं, उसको भी यूज कर सकते हैं। फिर आप उसको 1 मिनट के लिए आप मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, और आप अपना ये ओवरऑल फिटनेस अगर ये 15 मिनट का कर सकते हैं तो यू कैन बी हेल्दी। इसके आगे जो है ये एक्चुअली कुछ है, ये आप फिट इंडिया की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, या तो फिटनेस 365 की वेबसाइट में देख सकते हैं। ये एक्चुअली 5 आप जो स्कूल में बेसिकली एज फिजिकल एजुकेशन टीचर आपको सारे टीचर्स को फिट करना है। काफी छोटे छोटे एक्टिव ब्रेक्स है। अभी कोविड-19 का टाइम है या कभी भी हो, ये सारे वीडियोस है, मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। छोटे छोटे ब्रेक, 5-5 मिनट का ब्रेक है, कभी भी करा सकते हैं आप। एज एन एग्जाम्पल, ये जो चीज हमने देखा था अभी, ये सारी चीज वही है। So I'm not going to play everything. प्ले नहीं करूंगा, आप इसको जैसे ये सारे प्राणायाम हो गया, ये हो गए सारे फॉरवर्ड बेंडिंग पोज, ये सारे पोजेस हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, 1 2 स्टैंडिंग पोस्चर्स है, 3 4 5 6 आप इसको बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। 8 ये पूरा इजी 9 स्कूल में 10। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको हाई इंटेंसिटी, ये अगर हाई इंटेंसिटी कुछ करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसको प्ले नहीं कर रहा हूँ, बट व्हाट यू कैन डू इज दैट, ये आप फिट इंडिया के वेबसाइट में भी देख सकते हैं, या तो फिटनेस 365 के वेबसाइट में भी आपको मिलेगा ये। तो ये छोटे छोटे एक्टिव ब्रेक्स हैं, 5-5 मिनट का। आपको आप कहीं पे भी देखेंगे 4 से 6 मिनट का है। किसी भी क्लासरूम में बच्चे जो हैं, आप क्लासरूम के अंदर भी आप बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, जो स्टैंडिंग पोजेस हैं, आप सारे कर सकते हैं। अब बाहर जो है बाकी चीज भी कराना है तो स्टैंडिंग पोस्चर से ये है, और सारे टीचर्स को, आपको बेसिकली टीचर्स को फिट करना है। तो अब जो असेंबलीज है, एक्टिव असेंबलीज आप कीजिए। तो मान हफ्ते में कम से कम 2 दिन जो है, यू कन्वर्ट योर असेंबलीज इनटू एक्टिव असेंबलीज। जो भी पीई टीचर्स हैं, जो किसी भी योगा में कंफर्टेबल हो, एरोबिक्स में कंफर्टेबल हो, सिंपल फ्री हैंड एक्सरसाइजेस में कंफर्टेबल हो, ये जो है ये अलग अलग है। कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइजेस है और कुछ योगा के हैं, कुछ प्राणायाम वगैरह। सिमिलरली इंपॉर्टेंस है एक्टिव आउटिंग्स का। आप साइड में कोई भी पार्क है, आप जाके कोई भी गेम खेल सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे फन जंप्स है,
प्लस यहाँ पे जो है सेकंड पिक्चर है वो चेन चेन करके जो गेम है आपने खेला होगा, चेन चेन वाला गेम है। आप 2 टीम्स बनाइए, आप वो बॉल को बीच में रखिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को, एक पर्सन जाएगा, एक बॉल को पिक करके आएगा, जब वो लौट के आएगा तो दूसरे पर्सन को ज्वाइन कर देगा टीम में, फिर आएगा तो तीसरे को ज्वाइन कर, एक एंड से दूसरे एंड में उनकी बॉल को यहाँ से लेके वहां रखना है। तो ये है चेन चेन गेम है, वेरी ब्यूटीफुल टीम बिल्डिंग गेम है, टीचर्स के लिए बहुत मजेदार है, बिकॉज दे वुड ऑल लव इट। एंड ये सीनियर जूनियर जितना भी गैप है, कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, कुछ जूनियर टीचर्स होते हैं, एंड यू विल सी दैट जो सीनियर टीचर्स है वो चाहते हैं कि जो जूनियर टीचर्स है आप वो इस चीज को लीड करें। तो जो ये वाले जो पार्ट है सीनियर जूनियर सारे ये खत्म हो जाएगा। फिर उसमें गेम है, आप रग्बी का गेम करा सकते हैं, सिंपल रग्बी गेम है जिसमें आप रूल्स खाली बताइए, बट उनको बोलिए कि आप खुद ही एडमिनिस्टर करना है इस गेम्स को, आपको कोई उसको एडमिनिस्टर नहीं करेगा, कोई रेफरी नहीं होगा आपको। फिर आप देखेंगे जो दोनों टीमें लड़ रहे हैं, आप बाद में उनको लीडरशिप और रेस्पेक्ट के जो वैल्यूज है कि आप लड़ोगे, विनिंग एट एनी कॉस्ट इज नॉट ए गुड थिंग, वो सब वैल्यूज ऑफ स्पोर्ट्स आप सिखा सकते हैं। तीसरा देख सकते हैं ये जो है छोटी छोटी एजिलिटी ड्रिल है, इलिनियर सर्किट है। सो इलिनियर सर्किट में टीचर्स भाग रहे हैं, आप यू आर द पी टीचर, यू आर एक्चुअली टेकिंग द स्कोर, एंड पूरा जब खत्म हो जाएगा एक रिपोर्ट कार्ड, ये देखिए जितने भी टीचर्स हैं सारे के साथ सबके हाथ में एक एक रिपोर्ट कार्ड है, फिटनेस की रिपोर्ट कार्ड। अब जो 3-4 टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट कार्ड बनाइए, सारे टीचर्स को दीजिए, दे विल ऑल फील वेरी मोटिवेटेड अबाउट इट। तो उनको मजा भी आएगा, फन भी होगा, फिटनेस होगा, उसी टाइम पे उनका फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट कराइए, एक एजिलिटी का टेस्ट कराइए, 3-4 टेस्ट, बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें 2-3 भी कराएंगे तो दे विल फील गुड अबाउट इट। एवरीवन वांट्स टू बी फिट। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर बेस्ड एक्टिविटीज है जो टीचर्स के लिए, जैसे कुछ क्रिकेट के मैचेस करा लिए आपने, क्रिकेट हो फुटबॉल हो, एवरीवन वांट्स टू डू। कपड़ा कोई डजंट मैटर, क्या पहने हो, जीन्स पहने हो नहीं पहने हो, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टग एंड वॉर है, पेरेंट और टीचर्स के बीच में टग एंड वॉर। तो बच्चे जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करें कि टीचर्स को सपोर्ट करें। टीचर्स क्योंकि टीचर्स उनको देख रहे होते हैं, पेरेंट्स भी बैठे होते हैं, तो सो इट इज गुड फन। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं। ये वाला हो गया, पासिंग द बेटन करके है, फादर से मदर से बच्चे को, रिले रेस जो है आप उसको ब्रेक कर लिए 3-3, 4-4 करके, तो वो कोऑर्डिनेशन का बहुत कुछ उसमें है। दे ऑल लव इट। जो 3 लेगेड रेस है उसमें टीचर्स के बीच में कराइए, पेरेंट्स के बीच में कराइए, और कभी कभी डिजास्टर मैनेजमेंट के छोटे छोटे कैंप्स में जा सकते हैं। नेचुरल रॉक क्लाइंबिंग, अगर आसपास कोई हिल्स है, ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, उसमें अच्छा बॉन्डिंग भी होता है, आप फिर वो मस्ती भी करते हैं। यू जस्ट गो, अगर कहीं पे भी है, शहर में है, गांव में, जहाँ पे भी छोटे छोटे नेचर वाला है वहां जा सकते हैं। कुछ अगर ऐसे कुछ अवेलेबल है कहीं पे आसपास, कहीं पे भी है, आप जाइए, देखिए कोई किसी को पुल कर रहा है, कोई गिर रहा है, कोई किसी को बचा रहा है। दिस आर ऑल फन एक्टिविटीज। इसमें कमांडो नेट्स हो गया, बर्मा ब्रिज हो गया, जहाँ पे जो चीज मिल रहा है, अवेलेबल मिल रहा है, आप स्कूल के अंदर भी कर सकते हैं। बहुत सारे गेम्स है, 7 स्टोन के लिए बच्चों जो बचपन में खेलते थे, पिट्ठू, हॉप स्कॉच। दीज आर सम फन एक्टिविटीज जो आप सारे टीचर्स को एंगेज कर सकते हैं। तो ये कुछ एक वीडियो था, वो प्ले नहीं हो रहा है, बट ये मोटा मोटा एक स्ट्रक्चर्ड कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज जो होना चाहिए वो ये है। जिस तरीके से स्कूल में आप एक स्ट्रक्चर बनाइए, जिसमें स्कूलों में एक स्ट्रक्चर हो, एक एनुअल कैलेंडर बनाइए जो आपका, अगर फिट इंडिया एक्टिव स्कूल अगर आपको बनाना है तो आपको एक देखिए कि जैसे इंटरनेशनल योगा डे है, नेशनल स्पोर्ट्स डे हो गया, टीचर्स डे हो गया, फिर 2 अक्टूबर को प्लॉगिंग है। फिट इंडिया लास्ट ईयर जो है केंद्रीय विद्यालय ने 7.5 लाख बच्चे, टीचर और पेरेंट्स सबने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 4.9 लाख बच्चे थे, और जो 2.5 लाख से ऊपर जो थे वो पेरेंट्स और टीचर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने 2 किलोमीटर उन्होंने वॉक किया था, उसके साथ गंदगी उठाया था। 4900 kgs ऑफ लिटर, 49,000 kgs ऑफ लिटर उन्होंने पिक किया था। तो उसमें स्वच्छता भी हो गया, और उसके साथ साथ स्वच्छता भी हो गया, उसके साथ फिटनेस भी हो गया। तो 2 अक्टूबर को आप फिट इंडिया का प्लॉगिंग इवेंट आप अपने कैलेंडर में ऐड कर लीजिए, जिसमें बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स एक साथ कर सकते हैं।
नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद का जो बर्थडे है उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे को सेलिब्रेट कीजिए. यू कैन डू इट इन द स्कूल इटसेल्फ, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हो. इंटरनेशनल योगा डे में अगेन सारे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं. जो फिट इंडिया स्कूल वीक है वो नवंबर और दिसंबर में, गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दिया कि नवंबर और दिसंबर में किसी भी हफ्ते में आप फिट इंडिया स्कूल वीक सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें बच्चे, पेरेंट और टीचर्स तीनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो ये जो है कुछ कैलेंडर इवेंट्स को आप एनुअल अपने स्कूल कैलेंडर में ऐड कर लीजिए, प्रिंसिपल उनसे बात कीजिए. और क्वार्टरली जो है आप ये देखिए कि बच्चों का फिटनेस असेसमेंट आपको कराना है अप्रैल टू सितंबर के पीरियड में, और दूसरा वाला कराना है आपको अक्टूबर से लेके मार्च के महीने में. So what you should be doing is that when you are doing the fitness assessment of children, you also do the fitness assessment of all the teachers. All of them will love a report card. सबको बड़ा पसंद आएगा. सेकेंड है जो स्पोर्ट्स पीटीएम्स है, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स पीटीएम. जब भी आपका रिपोर्ट कार्ड होता है, आप इसको, जो पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, एंड व्हाट यू नीड टू डू, पीटीएम में क्या होना चाहिए. पीटीएम में आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए जिसमें बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड को कैसे रीड करना है, जो मैंने आपको दिखाया था सैटरडे को दिखाया था, रिपोर्ट कार्ड को कैसे रीड करना है, लेवल 1 to लेवल 7 क्या है, उसमें एक्टिव लाइफस्टाइल क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए बच्चों को, उनको न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, कैसे पोस्चर को इंप्रूव करना चाहिए, स्कूल बैग का वेट कितना होना चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो बॉडी वेट से. ऐसे छोटे छोटे 5-6 स्लाइड्स रखिए. और ओबीस बच्चों को क्या करना है, अंडरवेट बच्चों को क्या करना है, ओवरवेट बच्चों को क्या करना है, जिनके बच्चों का फ्लेक्सिबिलिटी कम है क्या करना है. तो बेसिक चीज है, छोटा छोटा 6 फिटनेस पैरामीटर और 4 चीजें जो आती है कि ओबीस हो, अंडरवेट हो, क्या करना है, न्यूट्रिशन का. तो ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन में आप रखिए. क्वार्टरली यू कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन ए कॉज. कोई भी वॉकाथन हो रहा है, मैराथन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जहाँ पे कैंसर है, कुछ भी है, या सिंपल टूर्नामेंट्स करिए स्कूल में, सारे टीचर्स उसमें इन्वॉल्व हो. वीकली एक्टिविटीज में क्या कर सकते हैं टीचर्स, आप सारे टीचर्स के लिए करवा रहे हैं, तो टीचर्स और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, आप उनको गाइडलाइंस. टीचर्स क्या हो सकता है, जो एक्टिव असेंबली है, सुबह की असेंबली है, हफ्ते में 2 दिन जो है आप उसको, उसमें 5 मिनट का एरोबिक्स, योगा या फ्री हैंड एक्सरसाइज, मैंने आपको एक्टिव ब्रेक्स का वो दे दिया, 5 मिनट बहुत है, 5 से 7 मिनट कराइए. योगा हो, एरोबिक्स हो या फ्री हैंड एक्सरसाइज, कोई भी चीज कराइए. आपको ये 6 वीडियोस दे दिए. अगर आपके टीचर है स्कूल में तो वो उनको कराइए, नहीं तो जैसे भी आप करा सकते हैं. फन और बॉन्डिंग एक्टिविटीज, आपको एग्जांपल दिया. स्टैंडिंग खो खो एक बड़ा सिंपल गेम है कराने के लिए. चेन मैंने आपको दिखा दिया. मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा. पैकमैन करके एक बड़ा अच्छा गेम है, मैं आपको दिखाऊं. पैकमैन वीडियो में ना खेल के ग्राउंड में खेलिए. और हॉपस्कॉच है, स्माइली गेम्स है, बहुत सारे हैं जो ग्राउंड में कर सकते हैं. और घर में करने के लिए एक्टिविटीज, जो फिट इंडिया के वीडियोस है जिसकी मैंने बात किया था, फिट इंडिया का ऐप अभी लॉन्च होने वाला है, उसको शेयर कीजिए. खेलो इंडिया के ऐप है, उसको लॉन्च कीजिए. कुछ पोस्टर से इन्विटेशन भेजिए एंड प्रेजेंटेशंस बनाए एक्टिव लाइफस्टाइल के ऊपर और कोविड-19 की एक्सरसाइज सबके साथ शेयर कीजिए. सो दैट एज पी टीचर आपको सारे लोग बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा उसमें. क्यों नहीं प्ले हो रहा है? Okay, so now we can. ये मैं बस इससे पहले बस ये कहना चाहता हूँ कि फिट इंडिया का ऐप अभी लॉन्च होने वाला है, मतलब इसी महीने में, जुलाई के महीने में लॉन्च होगा, जिसके अंदर ये सारी चीजें होंगी. प्लीज अब इसमें जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि वी नीड टू कंसीडर द सेफ्टी, बिकॉज many of the teachers who are not regularly participating in activity, many of the parents, they are not doing so. When we are trying to put some kind of program which can improve their health, so what are the things, safety measures they should keep in mind? First and foremost is they should do warm up. आपकी बॉडी में आपको थोड़ा सा वार्म अप करना बहुत जरूरी है. आप अपनी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग कीजिए, लाइट स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करके थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग, कुछ मूवमेंट है, चाहे आप अपने सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बट ग्रेजुअल होना चाहिए, ये ध्यान रखें. उसमें आप अपनी बॉडी का थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन आप उसमें बढ़ जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आपकी मसल्स में आ जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं. दूसरी उसकी बात होती है कि क्योंकि दिस इज एन एडिशनल प्रोग्राम दैट यू आर डूइंग, तो आपको अपने हाइड्रेशन को भी ध्यान रखना है. आप रेगुलर इंटरवल पे आप पानी है या लिक्विड है, जो भी बेवरेजेस हैं, आपको लेना चाहिए. स्पेशली जब हम कोई
भी एक्टिविटी करते हैं तो हमारी बॉडी से सोडियम पोटेशियम का बैलेंस कम होता है, तो हमारी बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं और हम सिंपल पानी पीते हैं। तो सिर्फ पानी में सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, तो आप कभी कभार लेमन वाटर है और कुछ जूसेस हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वो आप ले सकते हैं जिससे आपका हाइड्रेशन बैलेंस रहे। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप जब भी एक्टिविटी कोई भी कर रहे हैं तो करके तुरंत ऐसे सिंपल बैठ ना जाए, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है, आपकी हार्ट रेट ऊपर चली गई है, ठीक है, आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो आप कुछ लिम्बरिंग डाउन एक्सरसाइजेज भी कीजिए, कुछ लाइट शेकिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, कुछ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। तो आपको फिर आपका क्या होता है कि जस्ट थोड़ा टेम्परेचर भी नॉर्मल आ जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी जो वर्किंग मसल में पहुंच गया वो वापस आपके विसरल ऑर्गन्स में आ जाता है, और आपका हार्ट रेट भी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए आपको वार्म अप करना चाहिए, हाइड्रेशन रखना चाहिए, और आपको कूलिंग डाउन भी देखना चाहिए। और रेगुलरली आप अपने BMI को आपको चेक करना है, क्योंकि अगर आपका BMI 24 से अबाउट 25, 6, 7, 30 तक की तरफ अगर जाता है तो दैट इज ए अलार्मिंग सिग्नल। आप उसको चेक करना है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। और अब आप और जो सेफ्टी मेजर है, एक चीज और, जो भी आप एक्टिविटी करें तो आप देखें कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है ना, दैट यू शुड टेल इन एडवांस। अगर आपको कोई भी मेडिकल कोई हेल्थ इशू है, कोई आपको हार्ट में स्टंट डला है, या फिर कोई भी आपको कुछ अस्थमा की शिकायत है, या कोई आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उन चीजों को आपको कंसिडर करना चाहिए, आपको प्रॉपर एडवाइस लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब सेफ्टी मेजर में जैसे आप योगा करते हैं, तो योगा में आपको कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है कि आपका सरफेस स्लिपरी नहीं हो, ज्यादा रफ भी नहीं हो, ठीक है, आपको कोई क्रॉनिक डिजीजेस नहीं हो, ठीक है, आप प्रॉपर यू शुड डू अंडर गाइडेंस, सुपरविजन के आपको अंदर करना चाहिए, आपके चारों तरफ साफ सफाई रहनी चाहिए। और जब भी आप योगिक एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी जब भी करते हैं तो आप का स्टमक एम्प्टी रहना चाहिए, ठीक है। आपने 3-4 घंटे तक कुछ खाना नहीं होता, कम से कम 2-3 घंटे तक आपका इसको पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट बोलते हैं, मतलब आपका फूड है वो एब्जॉर्ब स्टेट में पहुंच जाए तो आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि आपको मूवमेंट होते हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपका बॉल भी, आपका बॉल्स एंड आपका ब्लैडर भी क्लियर होना चाहिए, आप इसका भी ध्यान रखिए। तो और स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स हैं, अगर वो उनका मेंसेस स्टेज में है, तो ऐसे जरूरी नहीं है कि दे शुड टोटली अवॉइड, क्योंकि हम स्पोर्ट्स में तो बेसिकली मेंसेस स्टेज में भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा लाइट एक्टिविटीज कर सकते हैं, लाइट योगिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया बिफोर, पहले क्या करना है। अब we are running short of time, huh? Okay. So we'll have to quickly wrap up. Okay. So now ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी आपको ध्यान रखना है कि सारे मूवमेंट आपके रिदमिक हो, स्लो हो, ब्रीदिंग मेंटेन रहे, और आप कम से कम 10 जो भी पॉजेज हैं 10 से 60 मिनट के बीच में होल्ड करें, तो आपको उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। और प्रैक्टिस के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आप तुरंत शॉवर लेने ना जाएं, आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, आप लिम्बर डाउन करें प्रॉपर, और आप एक नॉर्मल स्टेज में आने के बाद ही कुछ भी अगर आपको पीना है, खाना है, या फिर नहाना है, उन चीजों पे ध्यान दें। तो ये आप ध्यान रखें, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट। ये तो ओके, सो एक फिर है एनवायरमेंटल कंडीशन। अभी हमें देखना है कि जिस भी हम एनवायरमेंट पे कर रहे हैं, अगर वो हॉट है, ह्यूमिड है, कोल्ड है, तो आप ध्यान रखें कि आप है ना एकदम ज्यादा धूप में ना करें, ताकि वरना आपको सनबर्न हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। आप ज्यादा ह्यूमिड में ना करें, ज्यादा कोल्ड तो अगर है तो आप शेड के अंदर करें, आप किसी पेड़ की छाया में कर सकते हैं, आप कोई अगर आपके पास हॉल है तो वहां कर सकते हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, हाइड्रेशन का आपको ध्यान रखना है, और हैवी एक्सरसाइजेस ना करें एकदम से। अगर क्लाइमेट एक्सट्रीम है तो उसमें आपको लो इंटेंसिटी की एक्सरसाइजेस को आपको कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। और जो भी प्रोटोकॉल्स दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यस। Okay.
इसमें जस्ट टू टेल एवरीवन, जो फिट इंडिया स्कूल वीक है सारे टीचर्स और पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट कीजिए नवंबर और दिसंबर के महीने में। लास्ट ईयर काफी सारे स्कूलों ने किया था, ऑलमोस्ट 20-30,000 स्कूल ने लास्ट ईयर किया था। एंड सो नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 2.5 लाख स्कूल्स हैं जो फिट इंडिया की अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। ये उसका बेसिक फॉर्मेट है, हमने देख चुके हैं। 3 नवंबर या दिसंबर में कभी भी कर लीजिए। इसकी एक्टिविटीज अगर देखेंगे तो इसमें है एक्टिविटीज एंड फिटनेस है, न्यूट्रिशन है फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, फ्री हैंड एक्सरसाइजेस है सबके लिए। फिर उसमें वो भी है, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो ट्रेडिशनल गेम्स है और रीजनल गेम्स है, आप किसी के कोई भी आप उसको कर सकता है। इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है, टीचर्स भी इन्वॉल्व है सारे। ये जो फॉर्मेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं इस चीज का। ये फिट इंडिया का ऐप अभी लॉन्च होने वाला है काफी जल्दी, जिसमें सारे स्टाफ और पेरेंट्स को भी आप ये कर सकते हैं। ये अभी काम चल रहा है, आई थिंक अगले महीने तक ये लॉन्च होगा, जिसमें आप सबका फिटनेस असेसमेंट कर सकते हैं। जस्ट टू समराइज, आप समराइज कर लीजिए अंजलिया जी। ओके, सो अगर हम अब इसको पूरे को समराइज करें तो जो WHO ने भी हमें कहा है कि हमें 60 मिनट्स ऑफ प्ले हर बच्चे को देना है। और ये हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि व्हाई वी आर इन्वॉल्विंग टीचर्स एंड पेरेंट्स, बिकॉज वी आर कंसर्न्ड अबाउट द किड्स। हम बच्चों के लिए चिंतित हैं। तो एक बच्चे के लिए उसके रोल मॉडल कौन होते हैं? उसके टीचर्स और उसके पेरेंट्स। एंड मैक्सिमम ऑफ हिज टाइम किड्स आर स्पेंडिंग विद टीचर और पेरेंट। तो ये जो दो उसके रोल मॉडल हैं, अगर इन दोनों को वो देखता है कि स्कूल में जा रहा है, व्हेन ही इज गोइंग टू द स्कूल ही इज सीइंग हिज टीचर्स आर परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी, व्हेन ही इज कमिंग टू होम ही इज अगेन ऑब्जर्विंग द पेरेंट्स आर आल्सो डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। तो हमें बच्चे को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज उसके अंदर इम्बाइब हो जाएगा। तो ये बेसिक रीजन है, इसीलिए हमें पेरेंट्स और टीचर्स को भी फिट रहना जरूरी है। तो engagement of activity of teachers as well as parents is important। और रेगुलर इंटरवल पे चाहे वो बच्चे हों चाहे वो टीचर हों, उनका असेसमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर सुजीत ने अपने पिछले लेक्चर में कहा था कि बहुत अच्छी बात मेरे को लगी इसके बारे में कि वी हैव 12 lakhs of schools and almost 30 crore students। हम we are good in mathematics, we are good in science, doctor line में we have best doctors in the world, we have best scientists in the world। लेकिन वो क्यों? क्योंकि they are studying their subjects math, science, physics, biology from the very first class। और physical education and sports we are not studying in our regular curriculum। So this is a well said point कि हमें उसको इनिशियल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। रेगुलर फिटनेस असेसमेंट्स होने चाहिए टीचर्स के, पेरेंट्स के, बच्चों के। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमें जो फिट इंडिया स्कूल वीक है और उसको सबको मिलके सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये पूरा एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर हो जाता है। और आउटसाइड द स्कूल और जो कम्युनिटी वर्क्स हैं उनको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। हमें कम्युनिटी का ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हमारा बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स, everybody as a whole, the whole society become healthy। So this is all about the concept of fitness protocol for teachers and parents। Right. Thank you। Yeah. So thank you so much। Just I'm going to hand over to Usha ma'am। Before that, I just want to quickly tell everyone जो morning में नहीं थे कि there's going to be we just wrap up with this one। So essentially we are talking about a whole school approach to fitness, जिसमें बच्चे भी फिट रहो और टीचर्स भी फिट रहे और उनके पेरेंट्स भी फिट रहे और सारे कम्युनिटी को हम एंगेज करके रखें। So that is the whole idea that when we started out, जिसमें डॉक्टर किशोर ने, फिर डॉक्टर उषा मैम ने, बाद में एकता मैम, सरोज मैम, मिस्टर रोहित खन्ना, सभी लोगों ने whole school approach to fitness की बात कर रहे थे। So we started with that and we are ending with that also, the entire presentation। Thank you so much, all of you lovely participants। Just a small announcement। So valedictory function will be tomorrow for all the batches। Participation certificate to everyone who has attended this session। जितने लोगों ने sessions attend किया सबको मिलेगा।
सबका अटेंडेंस उस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट में लिखा होगा, किसने कितने दिन अटेंड किया हुआ है, जिसने 1 दिन किया है और जिसने 30 किया हुआ है, सारी चीज उसमें लिखा होगा, so that it is very clear. Online examination will be on 30th and 31st of July. We'll give you the details by email and material will be provided by 15. 15 तारीख तक हम आपको material देंगे, 15 दिन आपको मिलेगा. You will get 15 days to prepare, so don't worry. So there'll be a lot of time. And those who appear in examination will be eligible for second phase. Second phase हम जब भी करेंगे, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब भी करेंगे हम second phase, तब हम जितने लोगों ने एग्जामिनेशन दिया होगा इनमें से only those people will be this thing will be defined and announcing that. So with that, I want to thank you so much. Usha ma'am wanted to. Thank you, sir. Thank you so much. Let's take 1-2 question very quickly, sir. Because they have asked. Okay. Sir, one question is there. What will be the suitable exercise for above 65 years age for upper body strength? 65 के ऊपर का हम ये करेंगे. हम झंझरिया जी आप बता सकते हैं. Otherwise 65 के लिए will be circulating also the details. ठीक है. 65 के लिए देखो क्या है कि 65 एज ऐसी होती है जिसमें हमारे डिजेनरेशनल प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं. हमारे मसल्स और हमारे जॉइंट्स इतने हेल्दी नहीं रहते. लेकिन अगर एक आप रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा आपका हेल्थ स्टेटस क्या है. आपको कोई बैक पेन तो नहीं है, आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको अस्थमा तो नहीं है. तो वो इन चीजों को कंसीडर करके आप लाइट एक्सरसाइजेज कुछ भी कर सकते हैं. आप अपने अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए आप अपने आर्म्स रेज करके कुछ कर सकते हैं. अगर आपको छोटा मोटा कुछ इक्विपमेंट है आपके पास घर पे है तो उसको आप रेज कर सकते हैं. आप अगर पुशअप नहीं कर सकते तो आप मॉडिफाइड पुशअप कर सकते हैं. आप वॉल के ऊपर अपने बॉडी को प्लेस करके हल्का हल्का उसको वॉल को पुश कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन योर अवेलेबल स्ट्रेंथ आप वॉल पुशिंग एक्सरसाइज है, थोड़ा सा कुछ लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज है, जो भी आपके है लेवल पे वो आप कर सकते हैं. दिस इज माय सजेशन. Thank you, sir. Thank you. I'll hand over to Dr. Usha, madam. Thank you, Dr. Sanjay Prajapati and Dr. Sujit. Pranesh, could you just put the slide of Ken Hardman, please? Ma'am, I'm not a doctor. I'm just a patient. Pranesh? Yeah. Pranesh, could you have Ken Hardman, please? Pranesh? Pranesh, I just shared with you the photo of Ken Hardman, please. Now for the information of the participants, I'd like to inform you that we have one of the most pioneer in the field of physical education, Professor Ken Hardman. And I just requested him, I never knew he's one of the most pioneer working with the WHO, designing on what the curriculum for physical education should be, conducting an overall survey. So I'll just read out what he said. Pranesh, could you just put his picture, please? Pranesh, can you hear me? I'll speak to him. Yeah. While you talk, I'll just. Yeah. And in this, he has written, I wish to thank Sai LNCP for invitation to participate in the online physical education program. And what is significantly important event, it has attracted the attention, registration of so many teachers and coaches. It is an honor and privilege for me to participate in this program. Without actually attending the event, he has given a 25-page document, which I'm going to translate in Hindi and give it to you all. This is what his request is. There are 25 pages which he has sent. And that's why I want to, this will be a copyright of his. And the best part is there is also a workshop. 3 parts of the questions have been mentioned as a workshop. So which actually he has put across. So I really need to thank, can you just make the photograph bigger so that we can take a screenshot, please? You can just do Control A, Control Plus. Make it a bigger and please take a screenshot so that he knows. I'll be sending it to Professor Ken Hardman. And he has said he is unable to be present. There are 2 things which he has mentioned. Or you can just open. One is shaping physical education. The document is shaping. This is being translated in Hindi. Hindi में भी हमने इसका translation कराया है. 1-2 दिन में मिल जाएगा. ये आप सबके पास पहुंच जाएगा.
कि physical education हम किस तरह से हमें लाना चाहिए, how can we shape Make physical. it bigger. So in this case, the best part is he said how the curriculum should be, and Let me click on that and stretch it. and the second part of his paper, which I would like to especially mention, is of keys to physical education quality. He has mentioned how can physical education better serve the new needs of pupils and society in a dynamic, ever-changing world. What should be teaching in PE? How can teachers structure class experience in a more effective format? What changes need to be made in schools and wider community settings and professional preparation programs? What are the new challenges we might face in the future? And for the information of all the participants, on behalf of the Pranesh, I'd like to kindly record this. On behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, I'd like to thank Professor Ken Hardman, and I assure him that whatever document he has said, he has sent it across, it will reach all the participants. We are also translating it in Hindi too. So it was Professor's wish that this should reach all the panelists. So on behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, LNCP, I need to thank Professor Ken Hardman. Thank you so much. Thanks, Sujit. Over to Dr. Sanjay. Thank you, ma'am. Thank you so much. So the session was very wonderful and very informative, sir. I would like to express my sincere thanks to Sujit Panigrahi, sir, regarding today's session. The session was very informative, valuable for the participants. So thank you so much, sir. And also I would like to express my heartfelt thanks to Dr. Virendra Jhanjaria, sir, who has taken today's session also. So the session is very good, sir. Thank you so much, sir. And thank you all the participants, those who have attended the session, for their time. They have listened very patiently. So thank you each and everyone on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India, and Lakshmi Bai National College of Physical Education. Thank you all. Yeah, we'll just share the screen again. Just 1 second. We'll just share the screen again so that everyone is clear about the. Yeah. Thank you so much. I think the last 1 month has been wonderful. Again, for everyone's interest. Just a second. Just for everyone's listening, so the valedictory function will be tomorrow at 5 PM. आप schoolfitness.kheloindia.gov.in में जैसे आप आए थे, just look for this valedictory function. आप कल ज्वाइन कीजिए, उसमें डायरेक्ट उसमें काफी कुछ पैनलिस्ट होंगे, आप सबसे मिल सकते हैं. पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा. जितने लोगों ने सेशंस को अटेंड किया है, आप सबको सर्टिफिकेशन मिलेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट बाय द 15th. एंड उसमें आपका अटेंडेंस भी उसमें मार्क्ड होगा, उसमें लिखा होगा. ऑनलाइन एग्जामिनेशन है 30th and 31st of July. उसकी डिटेल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे ईमेल के थ्रू. प्लीज आप अपना ईमेल को चेक करते रहिए, जंक मेल और स्पैम मेल को भी चेक करते रहिए. हम 1-2 बार भेजने की कोशिश करेंगे आपको ईमेल, सो दैट किसी को मिस ना हो जाए. Around the 10th, around the 15th, we'll send you the details. Material जो है आपको 15 जुलाई को मिलेगा. अगेन आपको ईमेल के थ्रू भेजेंगे, तो आप अपने ईमेल्स को प्लीज चेक कर लीजिएगा जैसे भी होगा. एंड उसमें आपको सारे वीडियोस होंगे, सिलेबस होंगे, और जितने लोग एग्जामिनेशन के लिए, all those who appear for examination will be eligible for second phase. तो एग्जामिनेशन बहुत जरूरी चीज है. एग्जामिनेशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा. ठीक है. Thank you so much for all your time for the last 1 month. Thank you so much. Thank you everyone. ये आज जो है ये 5 o'clock को है. Maria Luisa, so she's associate professor and she's a member of IAPS GW. Important topic है cultivating mental health.
मेंटल हेल्थ एक चीज हम छोड़ देते हैं, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं. सो कल्टिवेटिंग मेंटल हेल्थ इज व्हाट शी इज गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग COVID-19. So you can join through the Zoom webinar ID which is given or through the international talks वाला section. कहीं भी आप क्लिक करके आ सकते हैं. So thank you so much. Thank you so much. See you.